بھارت کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی قرار۔ پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کے من گھڑت بیان پر منہ توڑ جواب۔ کہا بیان بھارت کے پٹے ہوئے موقف کے مردے گھوڑے میں جان ڈالنے کی ناکام مشق ہے۔ بیان کشمیر میں بھارت کی بربریت سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایسے بیانات سے پاکستان کی امن کوششوں کو داغدار یا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر الزامات اپنے ریاستی تشدد پر پردہ ڈالنا ہے۔ بھارتی موقف دوغلے پن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان ایسے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع اور آرمی چیف کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پاس کشمیر، گلگت بلتستان پر فرضی دعوے کرنے کا کوئی قانونی حق نہیں۔ جموں و کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر کی حیثیت سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کیا جانا ہے۔ بیان بازی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے عالمی توجہ نہیں ہٹا سکتی۔ بنگلہ دیشی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن کی پاک فضائیہ کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات۔ تربیتی اقدام کے لیے شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بنگلہ دیشی وفد کے JF-17 تھنڈر طیارہ لڑاکوں اور جدید ہارڈ ویئر پر اظہار دلچسپی۔ مشترکہ تربیت سمیت تعاون کی دیگر راہیں تلاش کرنے پر بھی اتفاق۔ آلودگی کم کرنے کے لیے الیکٹرک وہیکلز جیسے اقدامات سود مند ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دنیا تشویش کا شکار ہے۔ ماحول کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں تیزی سے کام جاری ہے۔ EV پروجیکٹ سے ماحولیاتی آلودگی کم ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب۔ کہا EV پروجیکٹ کے لیے بجلی فراہمی کی قیمت مناسب ہوگی۔ EV کلچر کو دنیا میں تیزی سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بجلی سستی ہوگی تو ہی صنعتیں بڑھیں گی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز کے لیے بجلی کے ٹیرف میں 45% کمی کا اعلان۔ کہا الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز کو بجلی بشمول ٹیکسز 39 روپے فی یونٹ دی جائے گی۔ چارجنگ اسٹیشنز کے لیے طریقہ کار بھی آسان بنایا جا رہا ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ 15 روز میں چارجنگ اسٹیشنز کی اجازت ملے گی۔ گردشی قرضے میں 12 ارب روپے کی کمی ہوئی۔ چند ماہ میں خطے کی سستی ترین بجلی عوام کو فراہم کریں گے۔ حکومت کا صنعتی ترقی کے لیے بڑا اقدام۔ خصوصی صنعتی زونز اور صنعتی اسٹیٹس کو بجلی فراہمی کا نیا نظام منظور۔ نظام کے تحت زونز اور ونڈ انڈسٹریل اسٹیٹس میں بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے افسران کے مداخلت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کابینہ کمیٹی نے بجلی فراہمی، انتظامیہ کو خود کنیکشن دینے، بل اکٹھا کرنے اور دیگر معاملات نمٹانے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم کے نئے نظام کا اطلاق تمام خصوصی صنعتی زون پر کرنے کی ہدایت۔ پاور ڈویژن اور نیپرا میکانزم پر آئندہ 2 سے 3 مہینوں میں عمل درآمد کرے گا۔ میرا احتساب تو عوام نے کرنا ہے۔ 5 سال چور چور کا راگ الاپنے والے کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ جب سے وزیر اعلیٰ بنی ہوں KP سے پنجاب میں کئی حملے ہوئے۔ کبھی نہیں کہا کہ میری خاطر سڑکوں پر نکلو، پنجاب پولیس والوں کو مارو یا پیٹو، جلاؤ گھیراؤ اور تشدد ہماری سیاست نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ بولے بہت سے لوگ نوجوانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اسکالرشپس دیتے ہوئے کسی سے نہیں پوچھا کس جماعت سے ہو۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام شروع کیا۔ ہونہار طالبات نے محنت کی بدولت اسکالرشپس حاصل کی۔ KP میں بے نظیر نشو نما پروگرام میں بڑے مالی غبن اور گھوست ملازمین کا انکشاف ہوا۔ ورلڈ فوڈ نے پروگرام پر خیبر پختونخوا میں کام روک دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی KP حکومت پر کڑی تنقید۔ کہا کہ مالی بے ضابطگیاں، گھوست ملازمین پر ورلڈ فوڈ پروگرام نے سوالات اٹھائے ہیں۔ علی امین کی ناک کے نیچے سے 799 ملین غائب ہو گئے۔ تمام پیسہ اداروں کے خلاف مہم چلانے والوں کو اس سیل کو دیا گیا ہے۔ پاکستان کی IMF سے بیل آؤٹ کے بعد کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری آئی۔ اقتصادی اصلاحاتی مہنگائی میں کمی ہوئی۔ موجودہ پروگرام آخری IMF پروگرام ہوگا۔
वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं पाकिस्तान चीन के मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। रवा माली साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड का इब्तदाई इजरा मुतवक्के है। पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए सी पैक एक अहम कदम है। अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम शुदा हैं। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का ट्रायल होता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत ने रिवाक्स 21वीं आईनी तरमीम केस के फैसले का हवाला दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये तरमीम खुसूसी मुद्दत और हालात में की गई थी। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ। दहशत गर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। पीटीआई की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल 11:30 बजे होगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात से एक रोज कबल चेयरमैन पीटीआई का दबंग ऐलान। कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का हामी हूँ। अगर जुडिशल कमीशन बनाने में कल पेशरफ्त न हुई तो फिर डेड लॉक होगा। बानी पीटीआई ने 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है। कल देखेंगे हुकूमत कितनी नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठती है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई और रिलीफ मिले। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। कल मुज़ाकरात का तीसरा मगर अमलन पहला दौर होगा। उम्मीद है कल पीटीआई वादे के मुताबिक तहरीरी मुतालबात सामने लाएगी। बॉल हमारे कोर्ट में आई तो इस मस्बत अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कल होने वाले मुज़ाकराती अमल पर बयान। पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी तो हम इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। किसी भी जमहूरी और सियासी निज़ाम में मुज़ाकरात बुनियादी तकाजा होते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीटीआई से सियासी कैदियों की फहरिस्त भी मांग ली। बोले पीटीआई कैदियों की फहरिस्त दे, फिर हम जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। उम्मीद है कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पीटीआई फहरिस्त और जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक अपनी शराइत बताएगी। ऊंची आवाज में बातें और तकरीरें करके सच नहीं छुप सकता। तारीख से सीखें और सिर्फ कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। ये बानी पीटीआई को जेल में ही रखना चाहते हैं। अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि हुकूमत ने तोशा खाना को ओपन एंड शट केस कहा। बानी पीटीआई पर साइबर केस भी बना, आज तक साबित नहीं हुआ। 190 मिलियन पाउंड जुर्म के पैसे थे। ये केसेस बनाते हैं और अदालतें उन्हें खत्म कर देती हैं। बानी पीटीआई से जेल में बैकजोर राबते हो रहे हैं। ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट से राबते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा कि जेल में पसे पर्दा बातचीत होती है। बानी पीटीआई क्लियर हैं, वो पेशकश कबूल नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा। अगर कोई डील हुई तो छुप कर नहीं होगी। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात का कायल हूँ। सियासतदानों को जेलों में नहीं होना चाहिए। माजी में जो कुछ हुआ उसके भी खिलाफ थे, मगर मुल्क में धांधे से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। सियासतदानों का किरदार भी इस हवाले से इत्मीनान बख्श नहीं रहा। हमें फख्र है कि हमारे पास मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। उड़ान पाकिस्तान पुररहम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। अपने वसाइल नहीं होंगे तो कर्जों पर गुजारा करना पड़ेगा। बैंकों के सरबराहान से दरखास्त की कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट विंडो खोलें। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर कहा कि सियासी जमातें बैरून मुल्क से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां शुरू की हैं। कोई भी मुल्क गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देता। सियासी जमातें अपने ओवरसीज लोगों को इदारों के खिलाफ बात करने पर लगाया हुआ है। बानी पीटीआई का हौसला बुलंद है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। बानी पीटीआई का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान।
मुल्क भर में एहतजाज होगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी तहरीक का पैगाम पहुंचाया, कहते हैं कि दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज किसी को सुन ही नहीं रहे। मुझे यही नहीं पता कि हमारा जुर्म क्या है और मुझ पर फर्द जुर्म आयद हो गई। शेख वकास अकरम पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, अली अमीन गंडापुर के नहीं। अली अमीन गंडापुर को कहना डेरा इस्माइल खान से बाहर निकल आए। बानी तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर और शेख वकास अकरम से नाराजगी का इजहार। वकला से मुलाकात में इंकशाफ। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ कोई बयान न दिया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लेने की भी हिदायत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ात आयद किए। दोनों मुल्जिमान की बरियत की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत कल होगी। 9 मई केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। एडीसी ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं पर 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने का इल्जाम। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेनबाम में ऑपरेशन। 4 खारजी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्दी और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहे। इलाके में मजीद ख्वारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत और वजीर आजम ने इंटेलिजेंस पर मबनी कामयाब ऑपरेशन करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। सदर ममलिकत ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, सिक्योरिटी के जवानों पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। खारिज के खिलाफ मुसलसल कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नापाक बनाने पर फोर्सेज को शाबाश देते हैं। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। 23 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से फितनाल खवारिज के 7 खतरनाक दहशतगर्द, असलहा, बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। लाहौर के अहम तालीमी इदारे के नक्शे भी बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IED, बम, 4 डेटोनेटर्स और पंफलेट भी बरामद हुए। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। सऊदी अरब की मुख्तलिफ जेलों में 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी कैद। कौमी असम्बली के इजलास में वक्फा सवालात के दौरान इंकशाफ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ जेलों में मुख्तलिफ जराइम में 10,279 पाकिस्तानी कैद हैं। सऊदी अरब ने मुआहिदे के तहत 570 कैदियों की पाकिस्तान मुंतकली के लिए रजामंदी जाहिर की है। राइट साइजिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। इजाफी सरकारी मुलाजमतें ख़त्म की जाएं। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐलान। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए माहौल फराहम करना है। सिविल एविएशन को वज़ारत दिफा में ज़म किया जाएगा। मुलाजमतें और मुलाजमीन के आखिरी 5 साल हैं, उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड बैंक के CPF के तहत $20 अरब के वादे का खैर मकदम। कहा कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। आर्मी चीफ और साथियों के काविशों को दिल से सराहता हूँ। CPF वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और सलाहियत पर एतमाद की अक्कासी करता है।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को दावतनामा मौसूल। जराये का कहना है बिलावल भुट्टो चंद दिनों में तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए अमरीका रवाना होंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को ओहदे का हलफ उठाएंगे। महंगाई से सताए अवाम पर एक और बम गिरने को तैयार। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपये 67 पैसे फी लीटर इजाफे का तखमीना लगाया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 98 पैसे और लाइट डीजल ऑयल में 6 रुपये 20 पैसे फी लीटर का इजाफा और इसका इम्कान है। बांग्लादेश 5 माह में पाकिस्तान से 8 लाख टन चावल बरामद करेगा। दोनों मुमालिक ने ढाका में MOU पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान से बांग्लादेश को 8 लाख टन चावल की बरामद को यकीनी बनाया जाएगा। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद भारत नवाज हुकूमत के खात्मे के बाद ये पहला हुकूमत से मुआहदा है। ढाका ने हाल ही में तिजारत और नकलो हरकत पर कई पाबंदियों में नरमी की। कुरम में अमनो अमान की कोशिशें बरकरार। अशिया खुरनोश अद्वियात और दीगर सामान का दूसरा काफिला कुरम पहुंच गया। काफिले में 25 ट्रक शामिल। 20 गाड़ियां क्लियरेंस न मिलने के बायस कुरम रवाना न हो सकी। दूसरी जानिब 3 माह से रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात ताहाल बरकरार। इलाके में अद्वियात खत्म होने के बायस मेडिकल स्टोर और प्राइवेट अस्पताल बंद। रास्तों की बंदिश के बायस ताजरों की हड़ताल जारी है। अमन खराब करने, आइन और कानून को न मानने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अमन अमान के हवाले से एक पेज पर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में अमन अमान पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन की बातें हो रही हैं मगर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंफी रुझान। 100 इंडेक्स 308 पॉइंट्स की कमी से 1,14,495 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क भर में सोने और डॉलर की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 2900 रुपए के इजाफे के बाद 2,80,800 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में भी इजाफा। डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 87 पैसे पर आ गया। PTA ने इंटरनेट सुसरवी का मलबा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाल दिया। फाइबराइजेशन और स्पेक्ट्रम में कमी और तवानाई मसाइल इंटरनेट में सुसरवी की नई वजह करार। PTA के मुताबिक टेलीकॉम साइट्स की सिक्योरिटी और पावर पैक अब बड़ा चैलेंज है। गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान 147 टेलीकॉम साइट्स दहशतगर्दों जबकि 739 चोरों का निशाना बनी। 42% टेलीकॉम साइट्स जनरेटर्स के बगैर काम कर रही हैं। लोड शेडिंग के दौरान सर्विसेज मुतासिर होने का बाइस बनती हैं। सिंध हुकूमत ने फिल्म, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज के फरोग के लिए कोशिशें तेज कर दी। शर्जील मेमन की फिल्म और ड्रामा नवीसों की खुसूसी हौसला अफजाई की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर की ज़ेर सदारत कॉन्टेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का पहला इजलास। शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत ड्रामे, फिल्म और दीगर मुतालिका तख्लीकी कामों को फ़रोग़ देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नए कॉन्टेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का क़याम मौशरती नशोनुमा के फ़रोग़ के लिए तश्कील दिया गया है। करप्ट और नाअहल अफसरान की फहरिस्तों पर काम कर रहे हैं, उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर ने खबरदार कर दिया। बोले चोरी और रिकवरी के लिए खुसूसी यूनिट कायम कर दिया गया। रेंजर्स, MI और ISI की मुआवनत होगी। लाइन लॉसेज में कमी और रिकवरी बेहतर करने से कंपनी को अरबों रुपए का फायदा हुआ। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। मुल्क बाकायदा शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा। लह में दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। गोप्स में -11, इस्तोर में स्कर्दू में -10 डिग्री रिकॉर्ड। कालाम का दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, क़ला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे।
اردو زبان کے معروف غزل گو اور سلام گو شاعر محسن نقوی کی 29ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ محسن نقوی کا کلام آج بھی ادب کے شوقین افراد کے دلوں میں زندہ اور جاوید ہے۔ ان کی شاعری میں جمالیاتی اور روحانی پہلوؤں کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ محسن نقوی کو 1994 میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ افسوس کہ 15 جنوری 1996 کو انہیں دہشت گردوں نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ مری سے ملحقہ 3 جنگلات شدید آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ فارسٹ رینج گھوڑا گلی PP1 فارسٹ رینج کمیٹی اور فارسٹ رینج ساملی جنگل 49 میں لگنے والی آگ شدت پکڑ گئی۔ لاکھوں روپے مالیت کی قیمتی لکڑی جل کر خاکستر۔ ریسکیو کے مطابق آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ کے مطابق گزشتہ سال مری کے مختلف 291 جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ لاس اینجلس میں تیز ہواؤں کے باعث آگ کی شدت بڑھ گئی۔ تاریخ کی خوفناک آگ میں 40,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ 12,300 عمارتیں مکمل طور پر تباہ۔ نقصان کا ابتدائی تخمینہ $275 ارب تک پہنچ گیا۔ آگ کے نتیجے میں 25 افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ ہو گئے۔ ہزاروں گھر بجلی سے محروم۔ حکام نے مزید 84,000 افراد کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں آگ کیسے لگی، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ATF کے عہدیدار جوز میڈینا کہتے ہیں کہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ATF مکمل تحقیقات کے بعد ہر سوال کا جواب دے گی۔ انکوائری کے عمل میں کم از کم 75 افراد حصہ لے رہے ہیں۔ آگ بھڑکنے کی 2 مقامات کی تلاش کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین کام کر رہے ہیں۔ مقامی افراد اور ممکنہ گواہوں سے بیانات کے لیے بھی ٹیم تعینات کی جائے گی۔ جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری جاری۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 62 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ بورج کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 5 فلسطینی شہید۔ رفح میں صہیونی فوج کے فضائی حملے میں درجن بھر فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیوں کے نتیجے میں شہداء کی مجموعی تعداد 40,707 ہو گئی۔ 1,10,265 فلسطینی زخمی۔ صہیونی جرائم کے خلاف برسر پیکار اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی۔ منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے صہیونی افواج کے مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا۔ جنگ بندی جمعرات سے شروع ہونے پر قیدیوں کا تبادلہ اتوار کو شروع ہونے کا امکان۔ غیر قانونی صہیونی ریاست اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کر دیا۔ جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک یول گرفتار۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تفتیش کار 1,000 کے قریب اہلکاروں کے ساتھ صدارتی محل پہنچے۔ اس سے قبل سرچ اور گرفتاری کے وارنٹ دکھانے کے باوجود تفتیش کاروں کو روکا گیا تھا۔ کرپشن انویسٹیگیشن حکام نے کہا کہ وارنٹ کی تعمیل روکنے والوں کو حراست میں لیا جائے گا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز نے یون کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کیا۔ مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے کراچی کے نوجوان نے سب کو حیران کر دیا۔ ایاز خان نے شائقین کرکٹ کے لیے نغمہ دل تھام لے پیارے بنا ڈالا۔ نغمے کے بول خود لکھے، AI کی مدد سے میوزک تیار کر کے آڈیو ریکارڈنگ کی۔ ایاز صادق کہتے ہیں کہ میوزک کی تیاری کے بعد ویڈیو بنانے کے لیے کافی محنت کرنا پڑی۔ نغمے میں قوم اور کرکٹ کے علاوہ کھلاڑیوں کی لگن اور جدوجہد کا بھی ذکر آیا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں مکمل۔ ایونٹ کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کے حوالے سے مشاورت مکمل۔ میچز کے ٹکٹوں کی ممکنہ قیمت سامنے آ گئی۔ پاکستان میں ہونے والے میچز کی کم سے کم ٹکٹ کی قیمت 1,000 اور زیادہ سے زیادہ 25,000 روپے ہونے کا امکان۔ دبئی میں ہونے والے بھارت کے میچز کی ٹکٹ ڈالرز میں فروخت کرنے پر اتفاق۔ ٹکٹوں کی فروخت اگلے ہفتے شروع ہونے کا امکان۔ ایونٹ کا آغاز 19 فروری سے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ سے ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ افتتاحی تقریب 16 یا 17 فروری کو پاکستان میں ہونے کا امکان۔ افتتاحی تقریب میں تمام ٹیمیں اور کپتان شرکت کریں گے۔ PCB نے ابتدائی پلان سے متعلق ICC کو آگاہ کر دیا۔ ICC پلان پر نظر ثانی کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی۔
اور 20 سال بعد کالی آندھی کا شاہینوں کے دیس کا دورہ 17 جنوری سے ملتان میں ہونے والی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے اسکواڈ تیار بطور بالنگ کوچ سابق اسپنر عبدالرحمان کی خدمات حاصل کر لی گئی ہوم گراؤنڈ پر فائدے کے لیے اسپنر پر توجہ مرکوز اسپنر ساجد خان اور نعمان علی کی جوڑی ایک بار پھر ایکشن کے لیے تیار ملتان اسٹیڈیم میں میزبان اور مہمان ٹیموں کی پریکٹس